और मुझे भी कैसा रहा हमारे यहाँ इलाज आपका? अभी इधर तो ट्रीटमेंट एकदम बढ़िया हुआ हमारा। फिट लगा यहाँ अस्पताल? कर्नाटक से आए आप? हाँ सर, कर्नाटक से आए। हम्म। उधर कैसा 4 साल से परेशान थे हम। 4 साल हो गए थे ना? 2020 में एक्सीडेंट हुआ, हम्म। तब से उधर 3 सर्जरी हुआ। फर्स्ट प्लेट डाले, बाद में बोन ग्राफ्टिंग किए, फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर डेब्राइडमेंट का सर्जरी हुआ, साफ सफाई का, फिर भी कम नहीं हुआ। फिर हम आपको कांटेक्ट करके इधर आए। इधर हमको पूरी तरह से संतुष्टि मिली है और हमारा पैर भी अभी ठीक हुआ है। प्लास्टर पे चलने फिरने के लायक हो गया है और हड्डी भी ऑलमोस्ट जुड़ गया है। तो एकदम बढ़िया है हमारा इधर आने से। और हम किसी दूसरे को भी सजेस्ट करते हैं, स्पेशल कर्नाटक कन्नड़ा पीपल को, ये उधर परेशान, जिस दिन एक्सीडेंट होता है उस दिन सीधा इधर आएंगे तो पेशेंट जल्दी रिकवर होगा। बात पैसे का नहीं, तो पैसा ये सब चीज थोड़ा आप कर्नाटक और कन्नड़ा की कन्नड़ा भाषा में। में आप बता सकते हाँ हैं सर, इनको? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಜೀಬ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಊರು, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದಿದ್ದು 2020ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಬೋನ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ನರ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಗೌರವ್ ಸರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಎಲುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. तो जैसे आपका यहाँ इलाज चल रहा था तो आपने और मरीज भी यहाँ देखे होंगे जिनका इस तरह का इलाज चल रहा है, हाँ तो सर। वो उनके बारे में भी आप बताना चाहें तो अपनी भाषा में चाहे बताना चाहें तो वो बताएं। ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತರತರದ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಥವಾ ನೇಪಾಳ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏಕದಮ್ ಫೇಮಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನೋಡ್ರಿ, MS ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಓಮಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಸೋಲಾಪುರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಪೂರಾ ಲೆಗ್ ಪೂರಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಯ್ತದ ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜರೋ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಬೋನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸುವಿಧಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನದ ನೀವು ಊಟ ನಿಮ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಫೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. धन्यवाद। तो जैसे मुझे जैसे और भी आपके क्षेत्र के मान लो लोग बाग आना चाहें या इलाज कराना चाहें, तो कई लोग तो भाषा की वजह से यहाँ नहीं आ पाते या फिर समझ की वजह से नहीं आ पाते। आप इतने दिन यहाँ रहे, आपने इलाज समझा, हमारा तौर तरीका भी समझा, तो ये सब चीज़ें और भी जो कोई पेशेंट वहाँ के आपके से बात करके आना चाहेंगे तो मेरे को लगता है कि उनको भी वो समझ पता लगेगी जो हम समझते हैं। तो नंबर दे देता हूँ ये इधर। जो कोई बात है तो उसमें क्या रहता है कि जब जिले और प्रांत की दूरियां इतनी हो जाती हैं तो समझ जरूरी है इलाज के लिए। तो जो आपके यहाँ समझ आपने हमारे यहाँ दिखाई तो वो उस चीज़ के लिए उनको कह सकते हो कि आपसे कोऑर्डिनेट करते हुए वो हमसे बात कर सकते हैं। तो नंबर देना चाहो तो ऑनलाइन दे सकते हो। ನೋಡಿ, ನಂದು ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು 8147761853 ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಂಗೆಸ್ಟ್, ನಂದು 5 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. 5 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ,
ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ, ಯಾರ್ದು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆडी ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. तो ये जो बात हुई मुजीब जी की उन लोगों के लिए है जो इन्फेक्शन की वजह से हड्डियां नहीं जुड़ रही हैं, जिनके LRS के ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो वो संपर्क कर सकते हैं। साथ के साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी और घुटने के लिगामेंट के ऑपरेशन भी हम लगातार उसी तरह से कर रहे हैं जैसे कि इन्फेक्शन के ऑपरेशन कर रहे हैं। इन्फेक्शन का ऑपरेशन जॉइंट रिप्लेसमेंट और लिगामेंट के ऑपरेशन से भी ज़्यादा जटिल होता है। तो मुजीब जी के केस पे थोड़ा सा डिस्कशन करके बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मुजीब जी का जो शुरुआत का एक्सरे देख रहे हैं, जो इसमें यहाँ के टिबिया बोन में फ्रैक्चर था, जिसके लिए इनका प्लेट के द्वारा ऑपरेशन हुआ था। धीरे धीरे इनके इस प्लेट वाले ऑपरेशन में गैप बन गए और हड्डी नहीं जुड़ी। साथ के साथ धीरे धीरे इनकी प्लेट भी बेंड होने लगी। जैसे शुरुआत में तो प्लेट चिपकी हुई थी और धीरे धीरे प्लेट उखड़ने लगी और हड्डी एक तरफ से दूर जाने लगी। पेच भी धीरे धीरे ढीले होने लगे और प्लेट निकलने लग गई। और ये प्लेट के जैसे होल देख रहे हैं, तो प्लेट के होल भी स्क्रू के होल भी जो बोन में थे बड़े होने लग गए। तो प्लेट की पकड़ छूटने लगी और हड्डी का जुड़ाव भी इसमें नहीं हुआ। तो इस समस्या से जो ये परेशान थे, तो इन्होंने हमसे भी संपर्क किया था उस समय कि सर इसमें क्या करना चाहिए। तो इसमें इनसे यही समझाया था कि भाई इसमें सर्जरी की ज़रूरत है, दूसरी आप रिवाइज सर्जरी इसमें करा लीजिए। तो इस रिवाइज सर्जरी को इन्होंने वहीं अपने क्षेत्र में, वहीं कर्नाटक में इन्होंने दूसरी नई प्लेट लगवाई, जो लंबी प्लेट थी जिसमें बोन की सेटिंग भी सही थी, पर किसी विधि से इनके फ्रैक्चर में दोबारा से इन्फेक्शन हो गया। तो उस इन्फेक्शन का इलाज जब ये दोबारा इन्होंने सफाई करवा के और स्टोमोलान की एंटीबायोटिक बीट डलवा के करवाया, जब ये हमारे पास आए तो इस स्थिति में थे कि इनमें इनके इन्फेक्शन भी रहता था और बोन का जो यूनियन था थोड़ा थोड़ा सा इनमें दिख रहा था। तो हमने इनको यही कहा था कि भाई देखो, पहले तो सफाई करेंगे, अगर ज़रूरत लगी तो आपके फिक्सेटर इलिजारो जो हमने इनको डिस्कशन करने के बाद यही बताया था कि अगर ज़रूरत लगी तो इलिजारो लगा देंगे, फिक्सेटर लगा देंगे, और अगर नहीं रही ज़रूरत तो आपके पक्का प्लास्टर कंजर्वेटिव इलाज कर देंगे। कुछ टेंसनेल का हमने ऑप्शन बताया, कुछ टेंसनेल के साथ प्लास्टर का ऑप्शन बताया। तो आखिरकार इनका जो इलाज हुआ उसमें प्लेट निकाल के कंजर्वेटिव इलाज हुआ। जो ऑपरेशन उनका हुआ तो उसके बाद इनका ऑपरेशन के बाद का ये एक्सरे था, जिसमें हमने इनको चलवाया, तो ये चल रहे थे, वजन ले रहे थे, हड्डी इनकी लोड ले रही थी। तो इसीलिए हमने इसमें कोई हार्डवेयर इम्प्लांट नहीं लगाया। फिलहाल इनकी स्थिति ये है कि इनके पक्का प्लास्टर लगा हुआ है, फाइबर कास्ट लगा हुआ है, टाँके कट गए हैं। इन्फेक्शन के टाँके हमने 15 दिन में काटे और इनका प्लास्टर भी हमने जो ऑपरेशन के बाद करीब 25-30 दिन में लगाया है, ताकि ये डाउट ना रहे कि बाद में दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। तो पूरे श्योर हुए कि भाई अब इन्फेक्शन नहीं है। जांच भी कराई ब्लड की, तो सब तरह से श्योर होने के बाद हमने इनके फाइबर कास्ट लगा दिया। तो धीरे धीरे यही उम्मीद की जाएगी इनके दोबारा से अब कोई ऑपरेशन ना हो, क्योंकि हड्डी का अलाइनमेंट इनका बिल्कुल स्ट्रेट है, हड्डी में कोई वायरस एंगल नहीं है और नी पे भी कोई लोड नहीं है, और लेटरल व्यू में भी हड्डी का एंगल सही है। तो हड्डी के एंगल सही है, कुछ इनका पार्शियल यूनियन हो रहा है। दोबारा ब्रेक करने की बजाय हमने इस पार्शियल यूनियन को ये सोचा है कि ये एनहेंस होकर इनके फुल यूनियन में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ इलाज मुजीब जी का काफ़ी राहत रहा, क्योंकि जिस तरह से इनके पहले इलाज इन्होंने कराए थे तो उनमें इनके खर्चे भी बहुत हुए थे और कोई संतुष्टिपूर्वक इनको जवाब नहीं मिले थे वहाँ पर, और इलाज से भी संतुष्ट नहीं थे। यहाँ इन्होंने जब इलाज कराया तो उसमें इनको पूरा रीएश्योरेंस मिला, संतुष्टि मिली, घर जैसा इलाज मिला। और बाकी तो मुजीब जी हमसे ज़्यादा अच्छे से बताएंगे किस तरह से उनका यहाँ इलाज रहा।